Hello everyone, how are you? This video is going to be a very important eye-opening video for especially the students who are just thinking to earn fast money. Money without hard work, I don't know how this concept works, but many people believe in it. As I'm working in this industry of investment, finance, as a CA final student, as I've done articleship, especially into all the segments, I would give you the reality of how the things work. And this video is especially required for the parents of this kind of students who are just thinking they have learned the art of investing, learned the art of finance, and they can just take the money and put into some investment strategy and earn a huge amount of money just like this. I would just give you some instances, examples, stories which will open your eyes. तो चलिए शुरू करते हैं. लास्ट में एक बोनस भी है. क्या बोनस है? बेसिकली आई हैव एक्सपोज्ड वन ऑफ द ब्रोकर्स who is like many brokers in this country who try to scam normal people having less knowledge. So I've acted while talking with them that I am just a novice person without any investment knowledge or trading knowledge, and I'd like to show you how they try to manipulate and how to recognize whether a person who is giving investment advice or who is getting associated with you in this wealth management journey is actually genuine, authentic or not. Okay, the first point that I want to pick right now is about the overall ecosystem of investment advice. क्या आपको पता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हो देन यू हैव टू हैव अ मिनिमम क्वालिफिकेशन. व्हाट इज दैट क्वालिफिकेशन? द होल investment advisory ecosystem is actually monitored by SEBI. So SEBI actually gives you the permission whether you can give someone any investment advice or not, because all money, be it 1 rupee or 1 crore rupee, whatever the money is, they are earned by people doing so much hard work, right? So if you're starting investment journey, you might just get the money from your family or whatsoever you earned from your job, business, and that you're putting into the financial market. And when you're doing so, there is so many risks involved in it, because there are some controllable risks and there are some uncontrollable risks. Controllable risks can be monitored by you, that is in your hand, but something which is uncontrollable, that's unpredictable also. That means whatsoever protection, whatsoever precaution you take, risk is involved. So whenever we talk about this kind of fast money scheme, okay, 21 दिन में पैसा डबल type schemes, these involve huge amount of potential risks. So if you do not have knowledge, even if you have knowledge but the idea of precaution or tolerance, then this industry is not for you. Actually, it will make your life hell. So why I'm making this video? Basically, I was just listening to one of the podcasts where a person was sharing his journey of investment, where he had made the loss of around 50-60 lakhs, and that time he was just earning 40,000-50,000 from his job. He has taken loan just by following the strategies of the YouTubers. They have committed mistakes and had so many losses. And this story is there in multiple middle class family. When I was child, I used to go to a math teacher, okay? And I used to see when we used to do our tasks, every time he used to just concentrate on his phone and just seeing the charts like this. That time I was in 9-10, I did not have any knowledge of stock market. That time I actually did not understand what he was seeing. So after certain days, he was very sad, and I asked him that why are you sad? He said, I had a huge amount of loss, about 5 to 6 lakh rupees. Why? Because he has just blindly followed somebody. He just got a tip, he had invested 5 to 6 lakh rupees, and everything was just gone. So yehi hua tha. As a mathematics teacher, he did not have the knowledge of financial market, and he might get the addiction of looking into charts, earning penny amounts, small money. मैं एक इन्वेस्ट आज और काल करके एक यूट्यूबर है, उनका एक पॉडकास्ट देख रहा था, कन्वर्सेशन विद कुशल के साथ, वेयर आई जस्ट गॉट अ वेरी गुड इनसाइट that if you talk about the richest investor, Warren Buffett, his average return is about 30%. So if his annual return is 30%, how can you just think that I can earn 10%, 15% daily? And if you compound that in a whole year, it would be a completely baseless amount. It is so much fluctuating, volatile, right? And this volatility exists. That's why there are so many instruments. There is hedging which is happening, right? So you have to understand how the market works. Other than that, you have to know how the psychology of the market works. So knowledge is one thing. First comes the knowledge. That is something which you cannot avoid, you cannot ignore. Then comes the experience, and then comes the uncertainties which you cannot predict, right? There are multiple studies, there are multiple researches, there are multiple tools, techniques, experience, commentary which try to figure out this may happen, but
there is, of course, even if you predict 99.99%, that 0.01% can destroy you in seconds. I have a philosophy in my life: without proper knowledge, I do not do anything, right? I can take risk, but I won't do something without any knowledge. जैसे कि क्रिप्टो हो गया, even if crypto gave so much huge amount of profit, मुझे पैसे कमाने हैं, बट मुझे ये भी पता है कि व्हाट इज माई औकात, राइट? व्हाट इज माई कैपेसिटी. ओके, मैं जितना कमाता हूँ उससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा. मैं लोन नहीं ले सकता, मैं मेरे फैमिली के पैसे डुबा नहीं सकता, राइट? सो दिस इज द केस. तो जो स्टोरी है, मैं और एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ आपको, बट थोड़ी देर में. तो जो टेलीग्राम टिप्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, मल्टीपल पीपल सेल सॉफ्टवेयर विच, और एक्सेल फाइल्स, ओके, मैक्रो यूज करके एक्सेल फाइल बना देते हैं जिसमें डेटा डालो और वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा और ग्रीन रेड सिंबल से वो बताएगा कि भाई इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें मत करो. तो ये सब चलता है और बहुत पहले से चलता आ रहा है. अभी टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, आप देखोगे AI कोर्सेस बेचा जा रहा है. आप देखोगे यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं वेयर इट इज सोल्ड दैट आप AI यूज करो, अभी स्टॉक पिक करने के लिए AI यूज करो तो सब कुछ हो जाता है. आपको दिमाग नहीं लगाना है, सीखने का कोई जरूरत नहीं है. ऑल दिस आर रबिश, ओके. बट टेलीग्राम का जो है, ये बहुत लोग फॉलो करते हैं कि भाई अगर मुझे कुछ आता है और मैं एक चैनल खोल दिया, मेरे फॉलोअर्स हो गए और मैं डालता हूँ, उसमें से कुछ बहुत अच्छा चल जाता है, कुछ अच्छा नहीं चलता. फॉर एग्जाम्पल मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, ओके. मेरे भी कुछ स्टॉक्स है जिसमें 30%, 40%, 100% तक रिटर्न है, और मैं सोचता हूँ कि भाई उसमें अगर मैं 10 लाख रुपए डाला होता तो वो आज 20 लाख रुपए हो जाते हैं प्रॉफिट में, 30 लाख रुपए टोटल हो जाते हैं मेरे पास. बट ऐसे थोड़ी ना चलता है ये. तो बचकाना है, क्योंकि मैं ऐसे सोचता हूँ, अगर मैं आज कोई फंडामेंटल एनालिसिस, मैं नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो अगर फंडामेंटल एनालिसिस में मुझे लगता है कि भाई इसमें ना 2 महीने में 30-40% प्रॉफिट हो सकता है, इसका जो ओवरऑल फिनेंशियल है, इसके जो मैट्रिक्स, लाइक वो सब्जेक्टिव होते हैं, मैं क्या क्या मैट्रिक्स फॉलो करता हूँ वो एक अलग कॉन्सेप्ट है. बट अगर वो मैं फॉलो करता हूँ तो तब मैं सोचता हूँ कि भाई इसमें तो रिस्क भी है. चाहे मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं थोड़ी ना 1 लाख रुपए डाल पाऊंगा, नहीं ना. तो मेरे लिए अगर 1 लाख रुपए बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं 1 लाख रुपए वैसे डालूंगा कि मेरा रिस्क ऑप्टिमाइज्ड रहे. 1 लाख रुपए में 50% मैं ऐसे स्टॉक्स में डालूंगा where I know that there will be 40% return. Then there will be some areas where I'm just little bit confused that whether it will do good or not. Maybe some penny stocks हो गए where I think it will grow, but it will not grow in. I do not have proper certainty. Just I have a gut feeling, or I just got some news or something. Okay, so in that case, I put that much amount of money, which is completely something that if it goes, I won't have much pain. Okay, even if 1 rupee goes, it will be painful for me, but the tolerance level is okay for that amount of money, so I put that amount of money there. So this is the, see, you cannot extreme, okay, like if the pendulum is there. तो मैं एक आमिर खान का इंटरव्यू देख रहा था where he was saying कि आप पेंडुलम नहीं हो सकते हो, एक्सट्रीम में नहीं रह सकते हो. there is a बीच का जर्नी also. so the whole world is not about black and white, you have to stay gray, right, in order to win. then अगर मैं मेरे CA स्टूडेंट्स कम्युनिटी के बारे में बात करूँ, आर्टिकलशिप फर्म में आप देखोगे, अगर आप CA कर रहे हो, CS कर रहे हो, CMA कर रहे हो, अगर आप इंटर्नशिप करते हो, तो आर्टिकलशिप इंटर्नशिप फर्म में आप देखोगे, स्पेशली फिनेंस जहाँ नर्चर होता है, आप देखोगे 3-4 तरीके से काम होता है. ठीक है, एक होता है कि भाई कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, आप ऑडिट कर रहे हो, तो आप देखते हो कि भाई इसने तो ये इतना अमाउंट ऑफ स्टॉक परचेस कर लिया, मतलब हाँ इसमें दम है, मतलब इतने सारे रिसर्चर्स है उधर. तो ये गलत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, बट आप खुद रिसर्च किए हो क्या, ये भी आपको सोचना पड़ेगा, राइट. तो ठीक है, वैसे हो गया एक. दूसरा ये होता है ऑडिटर्स कम्युनिटी होता है, ठीक है. और ये तो एक RVG करके हॉस्टल है मुंबई में, और मैं भी मुंबई में ही इंटर्नशिप कर रहा हूँ, आर्टिकलशिप कर रहा हूँ मेरा, तो मुझे ये पता है. इसलिए RVG करके हॉस्टल है, विच इज काइंड ऑफ अ हब फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग, ये माना जाता है, क्योंकि ऑल द पीपल आर डूइंग ऑडिट्स, दे इन्वॉल्व इन टू दिस काइंड ऑफ मैटर्स. तो जो भी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं, राइट, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स मीन्स जैसे कि मंथ क्वार्टर एंड्स आ रहे हैं, Q1, Q2, Q3, देन लास्ट में ईयर एंड हो रहा है Q4, देन बोनस इशू हो रहा है या राइट इशू हो रहा है, या तो कोई भी न्यू इशुएंस हो रहा है, FPO हो रहा है. तो जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं उनको पहले से पता चल जाता है, क्योंकि उनके थ्रू ही होता है ना, दे आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस मैटर्स. तो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, राइट. एंड फॉर दिस रीजन देयर वाज अ रेड ऑल्सो देयर. तो अगर ये होता है ऐसे, ये रियलिटी है, ये हो रहा है, अभी भी हो रहा है. इसमें क्या स्टेप इनटू करना चाहिए? मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है, सब कुछ है आपके पास, फिर भी आपको ये नहीं करना चाहिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी को, स्पेशली इनटू द गैम्बलिंग काइंड ऑफ थिंग. जैसे कोई भी पेनी स्टॉक है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे आपने डाल दिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क है और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी भी है कि वो इवेंट होने के बाद मे बी एक बोनस इशू हो गया, बट आप बेच नहीं पाए क्योंकि कोई बायर्स ही नहीं था, राइट. सो एट दैट मोमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं,
वो ट्रेड नहीं होते, पेनी स्टॉक से, छोटे कंपनी से और ऑपरेटेड स्टॉक से, तो आप फंस जाओगे और गंदा फंसोगे, ठीक है। नेक्स्ट है AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये भी देयर आर मल्टीपल टूल्स, और इवन ड्यूरिंग ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस वी ऑल्सो सी दैट many companies who give AI based solution to their customers, they purchase the chat GPT subscriptions, their APIs, and try to make things up and show to them. So अगर मैं बताऊं कि ये कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है, मैं बोलूँगा इसमें 50-50 ऑथेंटिसिटी है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो भाई आप कोई भी काम करोगे, आपको बेसिक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि कैसे कोई भी चीज़ इवेल्युएट किया जाता है। वो इवेल्युएशन पावर अगर आपके पास है तो आप जीत जाओगे, नहीं तो आप हार जाओगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस विद फाइनेंस स्टूडेंट। तो फाइनेंस स्टूडेंट्स का ये एक दोष मैं नहीं बोलूँगा, बट ये काइंड ऑफ ट्रेट है, मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। कैसे कि भाई मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया और वो स्ट्रैटेजी काम कर गया एक बार, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला जो रीपू है, ये मैं रीपू बोलता हूँ, ठीक है, ये रीपू बहुत खराब है। तो आप क्या करते हो, आप वही स्ट्रैटेजी को बार बार यूज़ करते हो और आप एक पर्सनल लेवल पे बायस क्रिएट कर देते हो, राइट। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो एंड टू लर्निंग। और मार्केट इज वेरी मिस्टीरियस, एनीथिंग कैन हैपन। इवन द richest ऑफ ऑल, द मोस्ट नॉलेजेबल पीपल हैव डन सो मेनी मिस्टेक्स। एंड मैं आपको बताता हूँ इंडिया में एल्गो ट्रेडिंग क्यों इतना ज़्यादा नहीं चलता है। अगर एल्गो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा चलती देन तो बहुत बड़े बड़े जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, बहुत बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स है, ओके, दे यूज जस्ट द एल्गोज एंड मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। वाई न्यूज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वाई अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स, अंडरस्टैंडिंग द फिलोसॉफी, द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि एल्गो और टेक्नोलॉजी के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू अगर आप करते हो, वो ना स्टेबिलाइज इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चलती है। मतलब अगर आप यूएस जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ऐसे कंट्रीज में आप देखोगे, ओके, जापान जैसे कंट्री में देखोगे, वहाँ के इंडेक्स आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, उनके भी जो रेशियोज होते हैं वो बहुत अंडर ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। मैं एक कंपनी का वैल्यूएशन कर रहा था कंपेरेबल कंपनी मेथड से, तो मैं एक डेटा देख रहा था, जापान की एक कंपनी है, आई थिंक टोटो लिमिटेड, सैनिटरी सिस्टम्स की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और उस कंपनी का जो एंटरप्राइज वैल्यू है दैट इज लेस देन देयर ओवरऑल वर्थ। दैट मीन्स मार्केट में वो अंडर वैल्यूड है। सो अंडर वैल्यूड कंपनीज उधर बहुत है, क्योंकि वो डेवलप्ड इकोनॉमी है। और इन दिस कंट्री देर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स कमिंग इन, दे आर ट्राइंग टू स्कैल्प द प्रॉफिट आउट ऑफ दिस अनसर्टेनिटीज, स्पेकुलेशन के थ्रू। और उधर स्पेकुलेशन उतना पॉसिबल नहीं है। तो जब स्पेकुलेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तब वो क्या करते हैं, मार्केट में एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है, इजी पैटर्न क्रिएट होता है, ट्रेंड बहुत इजीली बन जाता है। तब एल्गो ट्रेडिंग बहुत इजीली यूज कर सकते हो, क्योंकि वो छोटे छोटे आर्बिट्रेज सब कर सकते हो। बट इन इंडियन इकोनॉमी जब स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है, ह्यूज फ्लक्चुएशन इज देयर, आप प्रॉफिट सिर्फ सिस्टम से पैटर्न फाइंड आउट करके कमा नहीं सकते हो, कमा सकते हो, बट उसमें भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। और उसमें अगर पैसे कमाना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी आपको पुट इन करना पड़ेगा, और वो एकदम हाई लेवल फंड्स करते हैं, ओके। ये नॉर्मल इंसान के लिए उतना फायदेमंद भी नहीं है। अगर आप बोलोगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में, ठीक है, जैसे ब्लूमबर्ग हो गया और भी बहुत सारे टर्मिनल्स हैं, तो ये भी जो टर्मिनल्स है, ये आपको ये नहीं बताएगा कि भाई ये इसमें इन्वेस्ट करो, ये बहुत अच्छा है, एनालिसिस करके ऐसे नहीं देते वो लोग प्रॉपर स्ट्रक्चर में डेटा देते हैं। वो जो अनलिस्टेड इकोनॉमी है, जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा नहीं है, उसको बहुत अच्छे से सेग्रीगेट करके देते हैं, उससे काम ईजी हो जाता है। जैसे हम लोग भी अगर वैल्यूएशन करते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स, ट्रैक्सन हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत से सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं, सो दैट हमें डेटा मिल जाए। सो दे आर काइंड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड काइंड ऑफ रिसर्चर। बट जो मैं बोल रहा था कि अगर आप सही में इन्वेस्ट करते हो और कोई भी स्ट्रैटेजी आपका काम कर जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी बार बार आप यूज़ कर पाओगे इन एवरी सिचुएशन। तो आपको सीखते जाना है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कि मैं तो फाइनेंस स्टूडेंट हूँ, मुझे बैलेंस शीट पढ़ना आता है, मुझे टेक्निकल एनालिसिस करना आता है, मुझे ओवरऑल सिस्टम के बारे में पता है, देन ऑल्सो देयर इज रिस्क। और आप इसी के चलते, अगर आपका ओन मनी, अगर आपका जो खर्चा है वो आपके पापा मम्मी चला सकते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप जो इनकम कमाते हो आप उड़ा देते हो, तो आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा बहुत। बट बहुत लोग ये भी करते हैं, वो फैमिली का जो मनी है वो पुट इन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सपोज उनके पास 50,000 रुपये था, तो उन्होंने कुछ 10,000 रुपये कमा लिया। तो पापा ने सोचा, मतलब उसने पहले पापा को बोला कि भाई पापा देखो 50,000 रुपये आपने दिया था मुझे, मैं उसको 60,000 रुपये कर लिया। तो पापा तो अलग तरीके से सोचते हैं। पापा सोचते हैं कि भाई मेरे बेटे ने, मैंने उसको 50,000 दिया था, उसने 10,000 कमा लिया, मैं तो जॉब करके भी इतना डेली इसने 10,000 रुपये, मतलब अगर डेली बेसिस पैसे कमाए तो डेली ये 10,000 करके कमा सकता है, तो अच्छा है, मैं उसको 10 लाख रुपये देता हूँ 50,000 में। अगर
20% प्रॉफिट कमा लिया तो 10 लाख में 20% कितना होता है, 2 लाख रुपए हो जाता है, तो एक दिन में 2 लाख रुपए कमा लेगा, ये तो मेरे फैमिली इनकम से भी ज़्यादा है, ऐसे सोचते हैं, राइट। बट इसी के चलते इंसान फंस जाता है। और पापा ये सोचता है कि भाई मैं तो जॉब करता हूँ, ये बिजनेस करता हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मेरे बेटे को नॉलेज है, ये काम करता होगा, इसने अगर मुझे प्रॉफिट दिखाया मतलब सच में कुछ करता होगा, और ट्रस्ट के बेसिस पे दे देते हैं और वो पैसा डूब जाता है। और लगाम भी लगाना पड़ता है, राइट। समझ लो एक रिस्क लेके आपने पैसे डुबा भी दिए, तो एक लगाम भी लगाना पड़ता है कि भाई मैं कब रोकूंगा खुद को। रॉन्ग गाइड। तो ये चीज़ आप बहुत बार देखोगे कि एज ए स्टूडेंट, ठीक है, या कोई भी अगर इन्वेस्टर देख रहे हो, गाइड अच्छा चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइड हु हैज एक्चुअली गॉन थ्रू दैट पाथ एंड वॉन इट, सक्सीडेड इट। लूजर से आप बस एक्सपीरियंस ले लो कि ये तो नहीं करना है। और अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी लेना है तो आप अच्छे से ध्यान से सुनो कि भाई वो बंदा सही में डिसीजन लेने के लायक है कि नहीं, या डिसीजन देने के लायक है कि नहीं, उसने कितना खुद के लिए कमाया है कि दूसरों के वेल्थ इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो कहानी है, ये कहानी किसकी है ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये आप समझ जाओ। बट मैं ऐसे ही बताता हूँ कि भाई मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो जो कॉलेज में पढ़ता था, बीकॉम, नॉर्मल बीकॉम करता था वो, और बीकॉम में वो पढ़ता था तो उसका एक टीचर भी थे, और वो टीचर ना फिनेंस अकाउंटिंग पढ़ाते थे, और वो टीचर इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता था पहले ऐसे फ्री में कि भाई ये म्यूचुअल फंड है, इसमें इन्वेस्ट कर लो, ये बहुत अच्छा है, न्यू NFO आ रहा है, इसमें इन्वेस्ट कर लो, ये स्टॉक है, ये अभी खरीद के रखो, देखो 10 दिन में ये कितना अच्छा हो जाता है। तो एज ए स्टूडेंट वो सोचता था कि भाई शायद मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है, इनके पास तो बहुत नॉलेज है। बट आप देखो ये नॉलेज बनता कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आप कभी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आप जानते ही नहीं हो। आप सोचते हो कि भगवान या मार्केट में कोई भगवान बैठा है, ओके, वो सपने में आके बोलते होंगे कि भाई इसमें इन्वेस्ट कर लो, 3 दिन में पैसे कमा लोगे। ऐसे थोड़ी ना होते। बट हाँ, उस टाइम वो सोचता था, क्योंकि वो बच्चा था, जस्ट ज्वाइन किया कॉलेज, तो वो सुनता था। तो पहले फर्स्ट स्टेप इज ट्राइंग टू विन द माइंड ऑफ द पीपल। तो फ्री में वो आके, वो जो टीचर है, उनके इंटेंशन बाद में पता चलता है ना। तो पहले इन्वेस्टमेंट, ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 1 साल 2 साल का प्रोसेस है। ट्रस्ट जीतना बहुत इंपॉर्टेंट, उसको इनकैश करना और ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो पहले ट्रस्ट जीतते हैं, ठीक है, एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज बताते हैं, और धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, और उस बच्चे को लगता है कि भाई इस नॉलेज से मैं शायद बाद में कुछ कर सकता हूँ। तो पहले स्टॉक्स आता है, स्टॉक्स के बाद आता है ऑप्शंस, और उसमें लग जाते हैं, राइट। बट इसी के दौरान वो बंदा इनकैश कर लिया। कैसे? जो टीचर है उन्होंने कोर्स बेचना भी चालू कर दिया। 10,000 12,000 रुपये में कोर्स बेचता था कि भाई तुमको मैं 30 दिन लेक्चर दूंगा, फ्री में एडवाइस भी मिलेगा। और वो बच्चा सोचता है ठीक है, 10,000 रुपये में अगर मैं 10 लाख रुपये कमाने का ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ तो बहुत अच्छा है, और वो ये कर भी लेता है। और उसके बाद फायदा इज 0, 1-2 लॉस हो जाता है, 20 30 40 50 जितना पैसा लगाया उतना लॉस हो जाता है। उसके बाद उसको समझ आता है कि मार्केट सबका बाप है, कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी बाबा नहीं है जो आके डिसीजन दे के जा सकता है और प्रिडिक्ट कर सकता है कि क्या होगा 10 दिन बाद। नेक्स्ट इज अबाउट द लर्निंग कर्व। तो आपको समझना है, इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि मैंने कैसे सीखा और कैसे मैं सीखता हूँ। ऑफकोर्स मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई के बीच में कि मैं अलग से बहुत कुछ पढ़ूँ अबाउट दिस, बट व्हाट्स एवर आई एम लर्निंग दैट आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एज वेल एज व्हाट इज माई एक्सपीरियंस ऑफ, बिकॉज मेरा जो पोर्टफोलियो है वो तो प्रॉफिटेबल ही है, बट मैं पोर्टफोलियो दिखाता नहीं हूँ मेरा, क्योंकि मुझे दिखाना पसंद नहीं है, और मैं तो एक एडवाइजर हूँ नहीं। आई हैव क्वालिफाइड सेबी रिसर्च एनालिस्ट NISM का जो एग्जामिनेशन है, बट आई एम नॉट आई एम सर्टिफाइड, बट आई हैव नॉट टेकन द लाइसेंस ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। तो एक रिसर्च एनालिस्ट रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश कर सकता है, उसमें बाई सेल एडवाइस भी दे सकता है, बट नॉट टू अ सिंगल पर्सन, और वो काम है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का। सो जो जेन्युइनली मैं करने के लिए एलिजिबल हूँ वही मैं करूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। तो लर्निंग का क्या होना चाहिए, इसमें मैं 2-3 पॉइंट ही बताने जा रहा हूँ कि भाई क्या करना है आपको, हाउ टू लर्न। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिटर्न एक्सपेक्टेशन। फिनेंशियल लिटरेसी आपके अंदर होने चाहिए कि कितना मैं कमाता हूँ, कितना मेरा रिस्क टॉलरेंस है, कितना मेरा रिस्क एपेटाइट है, कितना मेरा अर्निंग कैपेसिटी है, कितना नॉलेज एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट को लेके, और उसके बाद ही मैं मेरे जो ओवरऑल इनकम है उस पाई चार्ट को मैं डिवाइड करूंगा इनटू हाउ मच आई हैव टू स्पेंड, हाउ मच आई हैव टू सेव इनटू इमरजेंसी फंड, एंड हाउ मच आई हैव टू इन्वेस्ट, एंड हाउ द एलोकेशन ऑफ एसेट वुड बी, सम इनटू वेरी रिस्क आइटम्स, सम इनटू सम मॉडरेट लेवल इन्वेस्टमेंट अरेनास, एंड सम इनटू वेरी सेफ जोन्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉक अबाउट द अनकन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हो गया आपका क्रिप्टो, बेटिंग एप्स, ओके। क्रिप्टो के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, क्रिप्टो के बारे में अवेयरनेस कोविड के टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसके बाद गवर्नमेंट ने तो इसको काइंड ऑफ डिमोट ही किया, ज़्यादा इसको चढ़ने नहीं दिया लोगों के सर पे, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही इतना अवेयरनेस नहीं है लोगों में। क्रिप्टो क्या हुआ ना, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टमेंट टूल है,
सो स्टॉक मार्केट ये सब धंधा तो बहुत पहले से चलते आ रहा है, बट क्रिप्टो एक झट से, और लोगों को ना फास्ट मनी कमाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो लोग ये सब चीज़ में फंस जाते हैं। एक मैं कहानी बताने जा रहा हूँ कि ये जो क्रिप्टो है, जब क्रिप्टो आई थिंक कोविड के पहले ही आ गया था, बट कोविड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और उसके पहले ही आया था बेसिकली। तो जब आया 2015, 16, 17, 18 ये सब जो साल है, धीरे धीरे क्रिप्टो ये सब आ रहा था। तो जब ये आ रहा था इंडिया में भी, बाहर तो ऑफकोर्स, बट इंडिया में धीरे धीरे बहुत सारे कंपनीज बने। तो ऐसे ही एक कंपनी जो है बनी थी, और उसमें एक एम्प्लॉई थे जो जिनसे मैंने बात की, मुझे समझ आया। तो वो कंपनी तब बनी थी जब ये बहुत ज़्यादा क्रिप्टो पॉपुलर हुई, एंड लोगों ने दे ट्राई टू गिव द अटेंशन टू इट। पैसे कमाने भी लगे और डुबाने भी लगे, और लोग सोचते गए कि हाँ ये बहुत अच्छा हैक स्ट्रैटेजी हो सकता है। एंड सम पीपल गो इनटू एक्सट्रीम, देयर दिस काइंड ऑफ पीपल आर देयर इन एवरी वर्ल्ड, सो दे ट्राई टू पुट ऑल द मनी इनटू दोज थिंग्स एंड दे गेट स्कैम्ड। बट वो कंपनी जो है, वो कंपनी भी चल रही थी, और उसके बाद वो कंपनी बंद हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस दे दिए। तो गवर्नमेंट डज नॉट थिंक इट एज अ काइंड ऑफ करेंसी, इट ऑफ कोर्स थिंक्स एज जस्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन, राइट, विनफॉल गेन टाइप ऑफ थिंग्स। एंड दैट्स वाई अगर आप क्रिप्टो, उसके लिए टैक्सेबिलिटी है जो हम पढ़ते हैं टैक्सेशन में, कि अगर आप जस्ट उस वॉलेट में पैसे डालते हो तभी वो टैक्सेबल हो जाता है, या पैसे जब विड्रॉ करते हो तभी टैक्सेबल हो जाता है, ठीक। तो ये जो सिनेरियो है। नेक्स्ट मैं जो बताने जा रहा हूँ दैट इज़ अबाउट योर बेटिंग एप्स। तो बेटिंग एप्स, बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी मैं बेटिंग एप्स में पैसे डालने देखा है, और ये काइंड ऑफ एडिक्शन ही है मैं बोलूँगा। और एडवर्टाइजमेंट तो ऐसे किया जाता है कि भाई जैसे बहुत कुछ कर लोगे बेटिंग ऐप से, इतना कमा लोगे उतना कमा लोगे, रमी और ये सब जो गेम्स होते हैं, जस्ट टाइम पास है, इस चक्कर में मत पढ़ो और अपना समय बर्बाद मत करो। देयर आर मल्टीपल थिंग्स यू कैन डू, एंड दैट्स हाउ आई वुड जस्ट गो इनटू माय नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड टाइम। एज अ स्टूडेंट, स्पेशली फॉर अ फाइनेंस स्टूडेंट, आपके लिए टाइम एंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अगर कोई भी वीडियो बनाता हूँ ना, इसके लिए भी, इसके पीछे भी मेरा एक ऑब्जेक्टिव रहता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, उस वीडियो के पीछे मैं जो रिसर्च करता हूँ उससे बहुत कुछ मुझे सीखने मिलता है, और दैट इज हाउ आई डू नॉट पुट रैंडम कंटेंट। तो कोई भी आप काम करते हो ना, उसके पीछे एक पर्पस होनी चाहिए। तो आप जो करते हो ये सब फालतू चीज़ें, बेटिंग ऐप्स में पैसे लगाना, ये सब कोई काम का नहीं है। आप लूडो खेल के क्या ही पैसा कमा लोगे, आप सोचो। तो अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े लोग लूडो खेलते ना, तो रमी खेलते, 3 पत्ती खेलते। हाँ, बहुत बड़े लोग कैसीनो में जाके पैसे उड़ाते हैं, बैंकॉक में, लास वेगस में जाके, बट that's just for fun. The main intention is not to earn money there. But middle class people, low income group people, they think कि एक लॉटरी जैसा है। ओके, मेरे कुछ रिलेटिव जो है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, बट बर्बाद हो गए हैं लॉटरी खेल के, ठीक है। सो दे जस्ट इनटू समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है आपके लिए, आपके माइंड के लिए, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए। तो ये सब मत करिए। तो नेक्स्ट थिंग इज वेयर टू इन्वेस्ट विद साउंड माइंड। तो साउंड माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड माइंड मीन्स आप अवेयर हो और आप नॉलेज भी रखते हो उस चीज़ के बारे में। तो एज ए स्टूडेंट आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे जब आप अर्ली इनकम कर रहे हो? जैसे अगर आप 15, 20, 25, 30, 50,000 रुपये भी कमा रहे हो, तो कहाँ इन्वेस्ट करोगे और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो आई जस्ट लाइक टू क्लब दिस 7 पॉइंट विद ऑल्सो 4 पॉइंट्स के साथ इंस्टेंसेस कि कैसे आप सीखोगे। पहले जब अर्न करते हो ना, आप पहले देखो कि आपका कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। पहले लाइबिलिटी आप पे ऑफ करो। पहले लाइबिलिटी पे ऑफ करने के बाद आपके पास जो पैसा है वो देखो एसेंशियल्स में आपका कितना खर्चा होता है। चलो उसको भी मैं लाइबिलिटी का ही एक पार्ट ले लिया। तो ये सब एसेंशियल्स करने के बाद आप आपके जो वांट्स हैं उसको कितना ऑप्टिमाइज कर पाते हो। मतलब अगर आपको बाहर खाना पसंद है हफ्ते में 4 बार, आपको मूवीज़ देखना पसंद है, आप कुछ खर्चे करते हो इन योर लाइफस्टाइल, ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, और ये सब जितना जो भी करते हो वो आप कितना ऑप्टिमाइज करते हो। एक होता है वांट, एक होता है डिज़ायर। आप वांट को थोड़ा बहुत फुलफिल करो, थोड़ा खुद को रेस्ट्रिक्ट करो, सो दैट आप कुछ बचा के रख सकते हो। क्योंकि पहले से आपको सोचना चाहिए कि आप 30-40% इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं। अगर 30% नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट 20% तो इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास कोई फैमिली इमरजेंसी फंड है, मैं एकदम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि सबके लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं। तो मैं एक स्टूडेंट के बारे में बोल रहा हूँ हु इज अर्निंग सम मनी, सेव 30,000, 35,000, एंड हाउ यू शुड इन्वेस्ट, और कैसे दे कैन हेल्प देयर फैमिली टू बिल्ड अ कॉर्पस। आप ये करो। पहले तो मोस्टली आई वुड थिंक, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको ज़्यादा पैसे देने का अभी लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप फैमिली में रहते हो तो आपके पापा मम्मी वो देख लेते हैं। तो बेसिक खर्चे तो आपके निकल जाते हैं। 35,000 में आप क्या करो, एक SIP करो। ऑफकोर्स एक SIP करो इनटू अ बिट रिस्की से स्मॉल कैप में करो। एक स्मॉल कैप में करो, एक मिड कैप में करो, ठीक है। इंडेक्स फंड में भी कर सकते हो। तो एक अच्छा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में खेल सकते हो, और एक मॉडरेट। तो 2 SIP आप कर सकते हो, से 5,000 रुपये एंड 5,000 रुपये, तो आपके 10,000 रुपये वहाँ इन्वेस्ट हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए अलग कहानी है। बट अगर आप
सीख के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है, तो ये चीज़ है। नहीं तो आप आपका जो फ्रैक्शन ऑफ आपका जो पोर्शन ऑफ म्यूचुअल फंड है वो बढ़ा सकते हो इफ यू आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। बट मैं बोलूँगा सीखने के लिए आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करो आउट ऑफ 35,000। जो 25,000 रुपये है वो थोड़ा बहुत सीख के अच्छी जगह में इन्वेस्ट कर सकते हो। हाउ कैन यू हेल्प योर फैमिली? You can help your family by starting their SIPs, having their overall term insurance, having their mediclaims, okay, medical insurances, taking the important tax deductions whenever possible. अगर न्यू टैक्स regime है वो पॉसिबल नहीं होगा, जो भी इंपॉर्टेंट टैक्स एग्जेम्पशंस है वो सब आप ले सकते हो, और आप कम टैक्स इंश्योर कर सकते हो कि आपके पापा मम्मी जो भी है फैमिली में सब कम टैक्स पे करें, सो दैट डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, तभी आप इन्वेस्ट कर पाओगे ना। तो इमरजेंसी फंड आप इंश्योर करो, आपके पापा मम्मी के पास एक इमरजेंसी फंड है, आपके पास भी एक फंड है जो आप रख सकते हो फॉर इमरजेंसी, जैसे कुछ हो गया, कुछ भी आपको जरूरत पड़े तो वो भी एक सेफ्टी फंड हो गया। तो आप जो 25,000 रुपये है ना उसमें से 5,000 रुपये सेफ्टी फंड में डाल दो, तो 20,000 रुपये है आपके पास इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप इक्विटी में ऐसे एक पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें अच्छे से स्टडी करो और आप इन्वेस्ट करो।